I would like to invite Mr. Pravesh Kumar ji, Senior Bank Manager, Punjab National Bank, to give in-depth knowledge of the Stand Up India schemes. Pravesh ji, welcome. Pravesh ji, are you there? His mic is switched off. I think you need to just give him a call. I think I can hear him. Parvesh, you are there? Yes, ma'am. Yeah. Yes. Thank you, sir. Thank you. Hello. जी प्रवेश जी, बोलना शुरू कीजिए. Yes. I am Pravesh Kumar from PNB. Today I will tell you about Stand Up India scheme of the bank. And प्रवेश जी, if you don't mind, थोड़ा मास्क नीचे करके बोल पाएंगे, because थोड़ा सा clear सुनाई देगा सबको. Thank you so much. Okay. The Stand Up India scheme has been launched by the Honorable Prime Minister on April 5, 2016. And the objective of the scheme is to facilitate bank loans between 10 lakhs to 1 crore to SC/ST and women and entrepreneurs. And customer can appraise access to the 3 potential ways through SIDBI portals and direct to the branch and through the respective lead district manager. Stand Up India scheme may be in manufacturing, services or trading sector. In case of non-individual borrowers, you can at least 51% stake should be of SC/ST and women enterprises. And the age of the entrepreneurs should be minimum 18 years of age. And the loan shall be sanctioned for greenfield project like new venture, new business start, or Stand Up India scheme में almost bank provide करता है composite loans like term loan plus cash credit limits, and cash credit about 10 lakhs. The facilities would be disbursed in the way of only cash credit limits. And Stand Up India schemes में interest rates जो minimum मैक्सिमम क्राइटेरिया है वो 1 ईयर RLR प्लस 3% से एक्सीड नहीं कर सकते हैं. और इसमें प्राइमरी सिक्योरिटी हाइपोथिकेशन ऑफ गुड्स लाइक रॉ मटेरियल, वर्क इन प्रोग्रेस एंड फिनिश गुड्स. और कोलेटरली सिक्योर्ड, द लोन शुड बी कोलेटरली सिक्योर्ड और NCGTC गारंटी कवरेज. और स्टैंड अप इंडिया स्कीम में सैंक्शन सभी लोन 7 ईयर का रिपेबल पीरियड होता है. इसमें विद इन 7 ईयर यू हैव टू रिपे द टर्म लोन एंड CC लिमिट शैल बी सैंक्शन ओनली फॉर 12 months. इन स्टैंड अप इंडिया स्कीम मार्जिन मनी रिगार्डिंग कस्टमर ओन कंट्रीब्यूशन. बोरोवर कैन minimum margin stipulated by the bank is 25%, but in recently it reduced to 15%, and customer minimum 10% contribution should be of through customer own contribution. Customer का अपना 10% जो प्रोजेक्ट लोन सैंक्शन करेगा बैंक, उसका 10% कस्टमर को अपने सोर्सेज से कलेक्ट करना पड़ेगा. और above 10% he can arrange unsecured loans and other term liabilities from individuals or any other institutions like unsecured loans etc. So if any customer like SC/ST and women entrepreneurs wanted to avail the facility under Stand Up India scheme, then he can use 3 portals. The customer can go in SIDBI Mitra, Udyam Mitra portal and direct to and
can go direct to the branch or and can avail the facility through the LDM. And the government provides online portals for Stand Up India schemes, and when a customer upload the loan application in Stand Up India schemes, तो in start में उसको minimum 10 questions का आंसर देना पड़ता है, like location of the borrower and what is the category of the customer, SC, ST or women, and nature of the business which he planned, and availability of place to operate the business. जहाँ पे उसको बिजनेस स्टार्ट करना है उस प्लेस की अवेलेबिलिटी क्या है, कि प्लेस आपने रेंट पे लिया है या ऑन प्रेमाइसिस है, एंड रिक्वायरमेंट ऑफ स्किल या ट्रेनिंग, आपको किसी ट्रेनिंग के स्किल की रिक्वायरमेंट है या कस्टमर इतना क्वालिफाइड है कि वो अवेल कर सकते, वो चला सकता है बिजनेस जिसको वो चलाना चाहता है, और उसका प्रेजेंट में कोई बैंक में अकाउंट है, और कस्टमर को कहीं भी मतलब डिफॉल्ट लिस्ट में नहीं होना चाहिए किसी बैंक की, द कस्टमर कैन नॉट बी इन द डिफॉल्ट लिस्ट ऑफ एनी बैंक। और जब सिडबी के पोर्टल पे जाते हैं तो उसमें कस्टमर को कोई प्रीवियस उसका एक्सपीरियंस अगर होता है उसमें, तो उसके बारे में भी उसको उसमें लिखना पड़ता है। एंड मार्जिन मनी का रिक्वायरमेंट जो अभी 25% से घटकर 15% पे आ गया है, वो रिक्वायरमेंट को कैसे पूरा करेगा कस्टमर फ्रॉम देयर ओन सोर्सेज एंड और अदरवाइज ही विल अरेंज द अनसिक्योर्ड लोन्स फ्रॉम मार्केट। ऑनलाइन पोर्टल में कस्टमर के लिए अगर कस्टमर ऑनलाइन पोर्टल में एप्लीकेशन रजिस्टर नहीं कर पा रहा है तो भी उसके लिए फैसिलिटी प्रोवाइड की जाती है कि वो कस्टमर के लिए ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाती है कि हाउ वी कैन अपलोड द एप्लीकेशन इन ऑनलाइन पोर्टल। और सिडबी, नाबार्ड और एलडीएम ये फैसिलिटी प्रोवाइड करता है फॉर सपोर्ट ऑफ द कस्टमर। जब कस्टमर इसमें ऑनलाइन पोर्टल पे जाके एप्लीकेशन रजिस्टर करना ही स्टार्टिंग का काम होता है, और इसमें अगर कस्टमर को कोई प्रॉब्लम आ रही है तो ट्रेनिंग अरेंजमेंट होता है, और ट्रेनिंग अरेंजमेंट तब तक आपको सपोर्ट मिलेगा जब तक आपका एप्लीकेशन नंबर जनरेट नहीं हो जाता है। और व्हेन एप्लीकेशन नंबर इज जनरेटेड एंड योर एप्लीकेशन हैज बीन सैंक्शनड एंड योर प्रपोजल फॉर प्रोजेक्ट लोन हैज बीन सबमिटेड टू द बैंक, शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स। एंड बैंक अपने एंड पे एप्लीकेशन को एसेस करता है और विद इन और जो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट थे वो कलेक्ट करता है बैंक। इफ कस्टमर प्रोवाइड ऑल रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट देन द बैंक कैन सैंक्शन द लोन टू द कस्टमर, and also the customer can check the status of his application in online portal। और जब ये प्रोसेस चल रहा होता है, जैसे कि कस्टमर ने एप्लीकेशन किया है बैंक में, तो इन सब की मॉनिटरिंग करता है एलडीएम के थ्रू, मॉनिटरिंग होती है लोन स्टैंड अप इंडिया के लोन की। और यदि बैंक इसको रिजेक्ट भी करता है प्रपोजल को, तो रिजेक्शन के पीछे मतलब कोई वैलिड रीजन बैंक को देना पड़ता है स्टैंड अप इंडिया स्कीम में। और स्टैंड अप इंडिया स्कीम में अगर कस्टमर का कोई ग्रीवेंस रेड्रेसल भी बनाया गया है, हर बैंक का अपना ग्रीवेंस रेड्रेसल होता है, और उसको 15 डेज के अंदर अगर किसी को कोई कंप्लेन है कस्टमर की तो उसको रिजोल्व किया जाता है। और डिसबर्समेंट के अलावा भी जो सिडबी का जो पोर्टल है उस पर बहुत सारी असिस्टेंस कस्टमर को दी जाती है, जैसे ट्रेनिंग, टेक्निकल एंड अदर फाइनेंशियल असिस्टेंस और मार्जिन मनी सपोर्ट। यदि कस्टमर मार्जिन मनी अरेंज नहीं कर पा रहा है अपने सोर्स से तो उसके लिए सपोर्ट भी दिया जाता है। और ये रॉ मटेरियल की सोर्सिंग, रॉ मटेरियल कहाँ से परचेज करे, क्योंकि कस्टमर नया नया प्रोजेक्ट लोन लेता है तो उसमें रॉ मटेरियल की सप्लायर कौन है, सबके लिए असिस्टेंस की रिक्वायरमेंट होती है। तो इसकी रिक्वायरमेंट को भी कंप्लीट किया जाता है स्टैंड अप इंडिया के पोर्टल के थ्रू। एंड शेड और वर्क प्लेस इंफॉर्मेशन, इन सब के बारे में भी इसमें बताया जाता है। रवेश जी, हम आपसे एक प्रश्न पूछ सकते हैं? बताइए मैडम।
हाँ, आपका जैसे अगर हमारे कुछ विमेन एंटरप्रेन्योर अपने प्रोजेक्ट लेके आपके पास आते हैं तो आप उनको एंटरटेन करेंगे, एंड आपका क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट इन जनरल होगा? तो बैंक में मैडम स्टैंड अप इंडिया पोर्टल के लिए फील्ड ऑफिसर अपॉइंट किए गए हैं बैंक के स्टाफ, और वो आपको हर चीज में आपको सपोर्ट करेंगे। जैसे कि आपको ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन में पोर्टल में कैसे उसको अपलोड करना है, तो सबको सपोर्ट मिलता है यहाँ पे बैंक में। जी, आपका बैंक ऑफ इंटरेस्ट क्या है, रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है प्रवेश जी? क्योंकि जनरली बैंकर्स हमें वो थोड़ा आइडिया दे रहे हैं। रेट ऑफ इंटरेस्ट मैडम लिंक्ड है विद द रेटिंग, इंटरनल रेटिंग होती है। कोई भी प्रपोजल बैंक्स में आता है तो बैंक के प्रपोजल की इंटरनल रेटिंग होती है और रेटिंग बेस्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है। तो मिनिमम RLR जो रेपो रेट से लिंक होता है अप्रोक्सीमेट मैडम जी अप्रोक्सीमेटली 1 2 3 4 करके होती है। तो अगर ऑलमोस्ट जो रेटिंग आती है वो ऑलमोस्ट B1 आती है सभी की, तो RLR प्लस 2.10% रेट ऑफ इंटरेस्ट है, विच 8.90% रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है मैडम। जी, क्योंकि हमें और नेशनलाइज बैंकों ने भी बताया है, वो 9.90 के आसपास का उन्होंने बताया है। तो अगर आप भी होता है इसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है ना, रेटिंग के अकॉर्डिंग होता है, क्योंकि इनिशियल फेज में रेटिंग होती है, और क्योंकि ये प्रोजेक्ट लोन होता है पूरा, ये जो स्टार्टअप इंडिया जो है ये न्यू प्रोजेक्ट सेटअप करने के लिए होता है। तो प्रवेश जी, ये कितने टाइम में लोन जो है डिस्पर्स आप लोग बैंक वाले कर देते हैं अगर आपको प्रपोजल दिया जाए? यस मैडम, अगर प्रपोजल अप टू 25 लाख है तो 3 वीक्स है, और अबाउट 25 लाख है 6 वीक्स है। अच्छा, 25 लाख तक 3 हफ्ते के अंदर बैंक पैसा दे देता है। अगर 25 लाख से ऊपर है तो 1 महीने से ऊपर लगेगा। एक्चुअली टर्न अराउंड टाइम मैडम स्टार्ट होता है जब कस्टमर का जो टोटल हमको डॉक्यूमेंट चाहिए कस्टमर से एप्लीकेशन के साथ सेटिस्फैक्ट्री है, उस डेट से टाइम काउंटिंग होता है। ओके, ठीक। बट बैंक जो है मिनिमम इससे भी कम, अगर पेपर सारे कंप्लीट कस्टमर दे देता है तो इससे भी कम टाइम में बैंक का प्रपोजल सैंक्शन हो जाता है। ठीक ठीक। Any questions anybody wants to take with Parvesh ji, so they can ask? कोई भी कोई प्रश्न पूछना चाहता हो तो आप पूछ सकते हैं। अगर कोई प्रश्न हो तो आप लोग चैट बॉक्स में भी डाल सकते। तो परवेश जी, मानना ये है कि हर बैंक में, हर ब्रांच में बाद में हर ब्रांच में एक स्टैंड अप इंडिया का एक ऑफिसर आपने डिप्लॉय किया हुआ है जो हर एक महिला उद्यमी की मदद करेगा स्टैंड अप इंडिया लोन लेने के लिए। यस, ठीक है ना? वन अकाउंट पर ब्रांच ऑफ नेशनलाइज्ड, वन अकाउंट पर ब्रांच उनको देना ही देना है लोन, चाहे वो SC महिला हो, चाहे ST महिला हो, चाहे जनरल कैटेगरी की महिला हो। और SC ST में यानी महिला SC ST या मेल मेंबर भी हो सकता है मैडम। अच्छा, SC ST में मेल मेंबर, उनका सर इंटरेस्ट रेट कम होगा? मैडम इंटरेस्ट रेट अकॉर्डिंग टू SC ST कैटेगराइजेशन नहीं है, रेट ऑफ इंटरेस्ट इज अकॉर्डिंग विल बी सेम एंड अप्रोक्सीमेटली 8.90% दैट यू सेड। यस। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया परवेश जी हमें ज्वाइन करने के लिए।